لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا۔ سواگت ہے دوستو، آپ سبھی کا سنہرے لفظ میں سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی درد بھری نظم۔ سے پہلے بتا دوں دوستو، اقرا چودھری ایس پی کیرانہ، میں اس صدن سے دنیا بھر کے الپ سنکھیوں کے لیے آواز اٹھاؤں گی۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، گھر لے کے جائیے گا یہ مصرے کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، پیار کی بڑی اس سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ ایک جٹ ہوئیے، متحد ہوئیے، آپ کے پڑوس میں جو بھائی رہتا ہے اسے بھی منائیے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر کے من مٹاؤ ہو، کسی چیز پہ آپ ناراض ہوں، لیکن بہت تنہائی میں بیٹھ کے یہ بات ضرور سوچئے گا کہ جب لڑائی ہو تو چھوٹے چھوٹے مقصد قربان کرنے پڑتے ہیں، جب لڑائی ہو تو چھوٹی چھوٹی من مٹاؤ والی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے ایک بڑے مقصد کے لیے۔ مقصد بڑا ہے، مقصد یہ ہے آپ کا کہ آمدار بھی بنانا ہے، مکھیہ منتری بھی بنانا ہے، تو مقصد بہت بڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج تو مجھے ودا دیجیے گا کہ 10 بجنے والے ہیں، آپ سے بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا، میرے آنسو سنبھال کر رکھنا۔ آپ جہاں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، کھڑے ہوئیے اور اشوک چوہان صاحب کو یہ بتا دیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا کی ہر بیماری کے علاج کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج تک اپنی پھڑکتی ہوئی آنکھ نہیں صحیح کر پائے۔ نام لے لوں گا نہیں، آپ جان جائیں گے کہ میں سوامی رام دیو جی کی بات کر رہا ہوں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں، بس تھوڑا سا ایسے بالکل لائٹ موڈ میں سنیے گا، پھر ایک سنجیدہ نظم سناؤں گا آپ کو کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی۔ پچھلے دنوں انہوں نے ہریانہ کے پیس ایمبیسڈر ہیں، وہ ہریانہ گورنمنٹ کے، ایک بیان دیا انہوں نے کہ جو جے نہیں بولتے، میرے ہاتھ اگر قانون سے بندھے نہ ہوتے تو میں ان کی گردنیں کاٹ دیتا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ جو پیس ایمبیسڈر ہے وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے کہ جو نفرت کے سبب اٹھی تھی وہ للکار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہمارے خون کو پیاسی تھی وہ تلوار کس کی تھی، ہماری گردنیں مت کاٹیے بس یہ بتا دیجئے، جسے تم پہن کر بھاگے تھے وہ سلوار پہن کر بھاگے تھے وہ۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ ایسا شریف انسان اگر نصیب ہوا ہے تو آپ نے اگر انہیں وہ جیت دی جس کے وہ حقدار ہیں، تو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جیت کے جشن کا ایک بڑا پروگرام میں 4 اکتوبر کو لندن جا رہا ہوں، اور ووٹنگ کے بعد ہی میرا خیال ہے میرا لوٹنا ہوگا۔ میں وہاں بھی جا کر کے
दुआएं करूंगा कि आप बड़ी तादाद में एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट करें। जहां जहां आपके रिश्तेदार हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, अलग अलग मतदार संघ में, उन्हें भी फोन करके ये कहें कि नहीं, ये बंटने का वक्त नहीं है। और अगर आपने उन्हें बड़ी जीत दी तो इंशाअल्लाह इसी मैदान में एक और जश्न का प्रोग्राम होगा, जिसमें पूरी रात में कोशिश करूंगा कि आपको बहुत कुछ सुनाऊं, आपसे मुखातिब रहूं। और आज 4 मिसरे सुनाता हूं आखिर में ये कि नाज़रीन, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत औफ बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 शख्सों के दरमियान फैसला फरमाया जिसके खिलाफ फैसला हुआ था। जब वो वापस जाने लगा तो उसने अफसोस के साथ हस्बी अल्लाह व निअमल वकील कहा, अल्लाह ताला ही मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन काम बनाने वाले हैं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला मुनासिब तदबीर न करने पर मलामत करते हैं, इसलिए हमेशा पहले अपने मामलात में समझदारी से काम लिया करो, फिर उसके बाद भी अगर हालात नावाकिफ़ हो जाए तो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील पढ़ो। इससे अपनी दिली तसल्ली कर लिया करो कि अल्लाह ताला की ज़ात ही मेरे लिए काफ़ी है और वही इन हालात में भी मेरे काम बनाएंगे। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, अल्लाह ताला ही बंदे की 5 बातें लिख कर फारिग हो चुके हैं, इसकी मौत का वक्त, इसका रिज़्क़, इसकी उम्र, बदबख्त या नेक बख्त। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ की एक हकीकत होती है, कोई बंदा इस वक्त तक ईमान की हकीकत को नहीं पहुँच सकता जब तक कि उसका पुख्ता यकीन ये ना हो कि जो हालात इसको पेश आए हैं वो आने ही थे और जो हालात इस पर नहीं आए वो आ ही नहीं सकते थे। फ़ायदा इंसान जिन हालात से भी दो चार हो, इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो कुछ भी पेश आया वो अल्लाह ताला की तरफ से मुक़द्दर था और मालूम नहीं कि इसमें मेरे लिए क्या खैर छुपी हुई हो। तकदीर पर यकीन इंसान के ईमान की हिफाजत और वसवसों से इत्मीनान का ज़रिया है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 6 चीज़ों के ज़रिए दिगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। नंबर 2, रौब के ज़रिए मेरी मदद की गई है। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिल में मेरा रौब और खौफ पैदा फरमाते हैं। नंबर 3, माल गनीमत मेरे लिए हलाल बनाया दिया गया। पिछली उम्मतों में माल गनीमत को आग आकर जला देती थी। नंबर 4, सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद यानी नमाज़ पढ़ने की जगह बना दी गई। पिछली उम्मतों में इबादत सिर्फ़ मखसूस जगहों में अदा हो सकती थी और सारी ज़मीन की मिट्टी को मेरे लिए पाक बना दिया गया। तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल की जा सकती है। नंबर 5, सारी मखलूक के लिए मुझे नबी बनाकर भेजा गया। मुझसे पहले अम्बिया को ख़ास तौर पर इनकी अपनी ही कौम की तरफ भेजा जाता था। नंबर 6, नबूवत और रिसालत का सिलसिला मुझ पर ख़त्म किया गया, यानी अब मेरे बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। फ़ायदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुझे जामे कलिमात अता किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि मुख्तसर अल्फाज में मुश्तमिल छोटे जुमलों में बहुत से मानी मौजूद होते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास इस वक्त गई जब उनके वालिद हज़रत अबू सुफियान बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ था। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खुशबू मंगवाई जिसमें खुलूक या किसी और चीज़ की मिलावट की वजह से जर्दी थी। इसमें कुछ खुशबू लौंडी को लगाई, फिर उसे अपने रुखसारों पर मल लिया। इसके बाद फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे खुशबू के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत न थी। बात सिर्फ़ ये है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो उसके लिए जायज़ नहीं कि वह 3 दिन से ज़्यादा किसी का शौक़ मनाए, सिवाय शोहर के। इसका शौक़ 4 महीने 10 दिन है। फ़ायदा, खलूक एक किस्म की मुरक्कब खुशबू का नाम है जिसके अज्ज़ा में अक्सर हिस्सा ज़ाफ़रान का होता है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।